So, Bismillah Rahman Rahim. I hope I'm audible to everyone. And we begin with the name of Almighty Allah, the most merciful and beneficent. Allah साईं जी बात जारी नाले सां शुरू जेको तमामु घणो महिरबान असांजी सोच खां वधीक महिरबान आहे ऐं असां सभिनी ते पंहिंजो ख़ासि ख़ासि रहम ऐं करम कंदड़ आहे अपनी ख़ासि ख़ासि रहमतों के साथ हर वक्त उसकी रहमत साया फिगन है हम सब पर। उसी के नाम से हम आगाज करते हैं आज की इस क्लास का, आज के इस लेक्चर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, Sat Sri Akal, Aloha, and welcome to class number 3 by Sindhi Language Authority. This is a Sindhi language online learning course, and this is module number 3, lecture number 3, class number 3, since we are talking to all of you. This is 5 p.m., now 5:02 p.m. in Pakistan, and all the friends joining from the various part of the globe are welcome to this class. And this is 5:30 p.m. in India and 4 p.m. In UAE and the vicinity, various states of United Arab Emirates. It is 3 p.m. in Kingdom of Saudi Arabia. It is 12 in the noon, 12:02 now in London. And of course, when we are talking about थोड़ो अञा परते वञिजे जेकॾहिं यानी असां पंहिंजे ओभर ॾे जेकॾहिं अञा परते वञूं त सुबुह जो सवेर जो टाइम आहे। अल सुबह से थोड़ा बाद का वक्त है, 7 बजे का वाशिंगटन डीसी में, यानी अमेरिका के 6 टाइम जोन्स में से सबसे उर्ला वाला जो इलाका है वाशिंगटन और न्यूयॉर्क का, तो वहां पर सुबह के इस वक्त 7:03 हुए हैं। और अगर हम इस साइड पर जाएं, अपने ईस्ट पर जाएं, फार ईस्ट की तरफ जाएं या पैसिफिक रीजन की तरफ जाएं, या अगर सिधो सो जेकॾहिं चवां समुंड ॾिमो करे जेकॾहिं असां पंहिंजे खाॿी तरफ़ वञूं त थोरो अॻिते वेंदासीं त मूं पहिरियों इंडिया जो ज़िक्र कयो त हींअर हुते 5:30 थियनि पिया, बल्कि 5:34 हींअर 34 थियण वारा हूंदा। थोरो अञा परते वञिजे त टोक्यो में रात के 9 बजे हैं इस वक्त, 9 p.m. और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त रात के 11 बजे हैं, 11 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, और न्यूजीलैंड में इस वक्त रात के 1 बजकर कुछ मिनट हुए हैं। तो very good evening to friends from Pakistan and India and South Asia and Middle East, or late good morning or good afternoon, pre-afternoon to friends from Europe and UK, and a very good morning to friends from America, late good evening to friends from Far East. As I told you that this is class number 3 of Sindhi learning, Sindhi online learning. And we started this course on 29th of December 2023, and we have entered the new year. So happy new year to those who could not attend our last day's conversation in class and lecture. So thank you very much for your feedback. तव्हां सभिनी जे पारां जेका मोट मिले थी पई, उहे जेके हिन क्लास खे अटेंड कनि था, पर उन खां अलावा जेको इल्मी अदबी हल्को आहे, जाहिर है कि हमें एक बहुत बड़ा इल्मी अदबी हल्का उर्दू का भी, सिंधी का भी फॉलो कर रहा है और दीगर ज़ुबानों का भी, और वहाँ से जो अप्रिसिएशन हमें मिल रहा है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानों के जो बोलने वाले हैं, ख़ासतौर पर उसका इल्मी अदबी हल्का, तो कहीं पर हसरत का इजहार किया जा रहा है, कहीं पर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, कहीं पर तकलीद का अंदिया दिया जा रहा है कि इस किस्म की क्लासें हमारी ज़ुबान में भी शुरू होनी चाहिए। सो दिस इज एन इनिशिएटिव बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, and we are of course more than glad to host you all in this free course of Sindhi learning. So this is our module 3, and we will be starting, of course, as we started with the name of Almighty Allah, and the date is there. If you want to learn this another day, word of the day, this is Angaro. Angaro means Mangal, and Mangal means Sahshamba, जिसको पर्शियन में सहशंबा कहा जाता है. This is Tuesday, and 2nd of Jan 2024. This is lecture number 3. उन्हनि जे लाइ जिन जे लाइ lecture number पहिरियों आहे त उन्हनि खे असां भलीकार था चऊं पिया. भलीकार, I have already told you about as the word of the day. I think on day 1 I told you about the word of the day, that was Balikar. So the participants who have joined yet, and the participants who are about to join, of course, we will not, we can wait for them, but time cannot wait for us. So we have started our class, and the rest missing portion of this class, they can learn from the recorded version of the class. So, Bismillahir Rahmanir Rahim.
कल भी मैंने इस शेर को आपकी खिदमत में पेश किया था, और ख़ासतौर पर वो कि जो सिंधी बोलने वाले नहीं हैं, देखता हूँ कि कितने दिनों में इस बैत को, इस शेर को, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के इस कलाम को याद करके, अज़बर करके, लेकिन तफ़हीम के साथ, फ़हम के साथ अज़बर करके हम तक पहुँचाते हैं और मुझे सुनाते हैं। सो दिस इज़ अव्वल अल्लाहु अलीम आला आलम जो धनी। आज मुझे इसकी ट्रांसलेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन बहुत सारे अल्फाज की ऑब्वियस भी है, उसको समझ में भी आती है, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज उसमें अरबी के हैं। अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी, कादिर पहंजी कुदरत सी कायम माह कदीम, वाली वाहिद वहदहू राजिक रब रहीम, सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। इसमें कोई चीज काबिल फहम ना हो तो हम आगे चलकर एक बार फिर बयान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे भी हमारी हर महफिल, हर बज़्म का आगाज इसी शेर के साथ होता है, या उस शेर के साथ होता है जो मैंने पहले दिन पर आपकी खिदमत में पेश किया था, जेरो तो जना बाजे पे ओडियाई मंगा। सो देखते हैं कि इन दोनों अबियात में से कौन सा बैत आप याद करके मुझे बताते हैं। We have a regular segment, a constant segment each day, which is the word of the day. आज का लफ्ज, हम रोजाना एक नए लफ्ज की तलाश करते हैं, एक नया लफ्ज सीखते हैं। वैसे तो खैर उमूमी तौर पर पूरे लेक्चर के दौरान हम मुख्तलिफ अल्फाज सीखते रहते हैं। सिंस वी विल बी रिवाइजिंग एंड रिव्यूइंग लर्निंग सिंधी टेबल, सिंधी अल्फाबेट टेबल, तो ज़ाहिर है कि उसमें 52 हरूफ हैं, तो कमो बेश सिवाय हमजा के बाकी 51 हरूफ जो हैं, 51 चीज़ों के नाम, जो कि जिनमें से अक्सर जो हैं वो इसमें ख़ास हैं, करीबन सारे ही 99.9%। तो वो इसमें हाय ख़ास जो हैं वो सभी इसमें ख़ास इसम अॻितां नवां सिखंदो, ख़ासि तौर ते उहे नवां सिखंदा असांजा दोस्त जिन जी पहिरीं ॿोली, जिन जी फर्स्ट लैंग्वेज, जिन जी मादरी ॿोली सिंधी न आहे, तंहिंजे करे उहे 51 लफ़्ज़ धार आहिनि। पर ही जेको असांजो सेगमेंट वारो लफ़्ज़ आहे उहो असांजो रोज़ानो सिखणु ज़रूरी आहे। दिस इज़ वर्ड ऑफ द डे, अॼु जो लफ्ज़। आज का लफ्ज़ एक बहुत ही मुख्तसर सा लफ्ज़ है, जो कि 2 हरूफ पर मुश्तमिल है, और दोनों हरूफ ऐसे हैं कि जो उर्दू में भी हैं, और यकीनी तौर पर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उसको समझने में, बल्कि वो लफ्ज़ भी उर्दू में है, लेकिन वो लफ्ज़ किसी और मायने में है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन के तौर पर सिंधी में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में उसको प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वो लफ्ज़ किसी और मायनों में मुस्तामिल ज़रूर है। वॉट इज़ दैट वर्ड? दैट वर्ड इज़, कैन यू गैस, एनीबडी कैन गैस? खासतौर पर मैं ये सवाल उनसे कर रहा हूँ जिनकी जुबान सिंधी नहीं है, जेके सिंधी ॻाल्हाइनि था उहे ने जवाब न ॾियनि, मतिलबु सिंधी जी ॿोली आहे उहे जवाब न ॾियनि। जिन जी सिंधी ॿोली न आहे उन्हनि खां थो पुछां, कैन एनीबडी गैस के व्हाट डू वी कॉल द सनलाइट? धूप को सिंधी में क्या कहते हैं? किसी को पता है, किसी को इल्म है? बहुत सारे लोग एट अ टाइम वो ना करें, अगर किसी को मालूम हो तो वो अनम्यूट करके मुझे बता दें अपने नाम के साथ कि कैन एनीबडी टेल मी कि धूप को सिंधी में क्या कहते हैं? जी सर, पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम सर, नाम बताएं पहले। सर वक्त का मुकाबला सख्त है, नाम बताएं और बताएं कि क्या कहते हैं सिंधी में फौरन। मोहम्मद इमरान जकरिया बात कर रहा हूँ सर। जी मोहम्मद इमरान जकरिया धूप आ साहब, गया। धूप। धूप, धूप को सिंधी में क्या कहते हैं? हेलो। धूप मेरी जबान सरायकी है, लेकिन ऐसा धूप ही आगना सिंधी में बहुत सारे जो लफ्ज हैं वो सरायकी जबान के मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये सिंधी में धूप नहीं कहते, सिंधी में कुछ और कहते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन सर, थैंक यू जकरिया साहब। एनीबडी एल्स? सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि ये अलिफ बे का जो कायदा है इसकी मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें जिस तरह के अलिफ बे ते से जीम हमारी जबान में पढ़ते हैं, लेकिन इधर जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं इसमें जो से है उस पे 4-4 नुक्ते हैं। मुझे थोड़ा ये गाइड करें सर, सर इसमें मैं परेशान हूँ। से पे कभी भी 4 और नुक्ते मेरा नहीं है। ऑपरेशनल एरिया डिस्ट्रिक्ट, से पे कभी भी 4 नहीं है। ये जो सर ये, आप अपना सवाल फरमा लें तो फिर मैं आपको लेकिन जवाब वो देता हूँ। ठीक है। थैंक यू जी सर। वेलकम सर, आप इसको म्यूट कर दीजिए। से पर कभी भी 4 हरूफ नहीं है, वो थे पर है, थे, TH, थे। जिस तरह से थैली, जिसका थैलीसीमिया, उस पर हैं हमारे यहाँ 4 नुक्ते। से पर सिंधी में भी 3 नुक्ते ही हैं, जिस तरह से अरबी में है, जिस तरह से हमारे यहाँ उर्दू में है।
तो बहरहाल जी, एनीबडी एल्स कैन एनीबडी टेल मी, क्या हम किसी और तरफ निकल जाएंगे क्या अगर सवालात लेना शुरू किए? कैन एनीबडी टेल मी, खासतौर पर वो कि जिनकी सिंधी मादरी जुबान नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, कि धूप को सिंधी में क्या कहा जाता है? कैन एनी गेसेस? धूप को सिंधी जुबान में क्या कहा जाता है? ओके, चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि जब मैं आपसे फीडबैक मांगूं तो एक गुजारिश ये है कि एक तो फौरी फौर आप अपना नाम बताएं, अनम्यूट करें, नाम बताएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और फौरन, ताकि वक्त को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। अगर किसी के इल्म में नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। ये लफ्ज़ है उससे। सिंधी को हम कहते हैं, सिंधी में हम कहते हैं सनलाइट को या धूप को उससे। अच्छा, उस लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए, किसके लिए? उसके लिए। उस यानी हिज के मायनों में या हर के मायनों में इस्तेमाल होता है उस। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक कल हेडलाइन बताई थी, पता नहीं कितनों को याद है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि उसकी तफसीली न्यूज़ में आज आपको बताऊंगा, जो आगे चलकर अल्फ़ाबेट्स के बाद, अल्फ़ाबेट की टेबल के बाद हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो उसका एक मैंने कुलिया ये बताया था, एक कायदा ये बताया था कि सिंधी में आखिरी हर्फ पर, जो भी आखिरी हर्फ होता है लफ्ज का, खासतौर पर प्रॉपर नाउन का, वैसे तमाम नाउन्स का जो आखिरी हर्फ होता है उस पर हरकत होती है। तो हम इसको उस नहीं बोलेंगे सिंधी में, इसको उससा बोलेंगे, क्योंकि इसका जो आखिरी हर्फ है वो सीन है और सीन पर हरकत है, जबर की हरकत है, यानी एराब जरूर होगी आखिरी हर्फ पर, सिवाय उन अल्फाज के जो वॉवल्स पर खत्म होते हैं। वॉवल्स कौन से हैं मैंने कल आपको बताया था। तो सिवाय उन अल्फाज के जो वॉवल्स पर एंड होते हैं, ऐसे तमाम अल्फाज जो कॉन्सोनेंट्स पर एंड होते हैं उस पर हरकत जरूर होगी, आराब जरूर होगी। तो ये लफ्ज है उस, अलिफ और सीन पर मुश्तमिल है। दोनों हरूफ जो हैं वो उर्दू में भी हैं। ये सनलाइट को कहा जाता है, सनलाइट को कहा जाता है, धूप को कहा जाता है, धूप को उससे कहा जाता है। अलिफ पर पेश है, सीन पर जबर है। ये आज का वर्ड ऑफ द डे। इसको उर्दू में बोलते हैं धूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सनलाइट। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। यानी उस लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जो उसका जो मफहूम है सिंधी में कुछ और है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, काइंडली म्यूट कर दीजिए अपने आप को, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो म्यूट कर दें। जब मैं आपसे कोई किसी चीज़ का फीडबैक मांगूं उस वक्त आप इमीडिएटली अनम्यूट करके अपने अपना नाम बताकर और अपने ख्याल का इजहार कीजिए। फिलहाल आप म्यूट कर दीजिए। तो ये उससे कहा जाता है धूप को, सनलाइट को। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, प्लीज सर मेंशन योर नेम। सर वकास अली सर। जी, वकास साहब। सर अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो कोलीग थे जिन्होंने आपसे बात की, उन्होंने कहा सिंधी कि में चो, सिंधी में चो, अल्फाबेट जो, सिंधी में चो। जी जी, जो कोलीग जो थे अभी रवि कुमार थे, आई थिंक क्या नाम था, उन्होंने बताया सिंधी कि में चो आपके मिठा, सिंधी में सराइकी। चो मिठा, सिंधी में ॻाल्हायो। हाँ सर, जी सर, जी जी सर, जी जी सर। सर हींअर मां ॿुधो त हिकिड़ो जेको आहे सो पार्टिसिपेंट हो, हुन इहा ॻाल्हि कई त असांजो सिंधी क़ाइदो जेको आहे सो सराइकी वांगुरु लॻंदो आहे। ईअं त आहे न, ऐं उन्हनि जी संभाल जे लाइ मूं ॾे जेको आहे पंहिंजो सिंधी क़ाइदो जेको हूंदो आहे पहिरीं क्लास जो, उन में अलिफ अलिफ अलॻि लिखियलु हूंदो आहे, ग माना मिठा हिकिड़ी ॻाल्हि ट्रांसलेशन ॿुधो, हुनजी पासे ॿुधो में हिकिड़ी लिखी ॻाल्हि थी। ॿुधो, ॻाल्हि ॿुधो। तव्हां म्यूट कयो पाण खे, मां सर तव्हां हिकिड़ी सर गुज़ारिश कयां, तव्हां म्यूट कयो, गुज़ारिश कयां। लेट मी क्लियर दैट दिस इज नॉट एन ओपन फोरम ना। किसी की तरफ से अगर कोई एक बात आए तो फिर उस पर सारे कमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर मेरी क्लास रह जाएगी। इसलिए जहां पर आपसे गुजारिश की जाए, थोड़ी बहुत जो है वो से होनी चाहिए। प्लीज म्यूट योर सेल्फ वकासा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो हम उस पर बात बाद में करेंगे। क्वेश्चन आंसर का अलग से हम 10 मिनट रख लेंगे, उसमें आप बहस कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे अपने पेस में जाने दीजिए। जो चीज स्लाइड पर है, अगर उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो आप रेज योर हैंड, I'll give you the chance, because उसमें डिस्टर्बेंस होती है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ सर। वकासा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ और anybody else who has सर मां unmuted, म्यूट please। थी वियो आहियां, मां म्यूट आहियां। म्यूट ना आयो, तव्हां म्यूट ना आयो, तव्हां मूंखे ऐं सभिनी पार्टिसिपेंट खे ॿुधिजो पिया, तव्हां काइंडली म्यूट करे छॾियो। सो एक गुजारिश मैं करूं कि किसी भी तरफ से कोई फीडबैक आए तो उस पर आप अपने कमेंट्स ना करें, क्योंकि ही इज टॉकिंग टू मी। तो उसको जो जवाब देना होगा तो मैं उसको उनको दे दूंगा, गुजारिश अर्ज रख लूंगा। जो पेस है उसको इससे डिस्टर्बेंस होती है, और खासतौर पर तमाम जो तलबा और तालिबात हैं वो यकीनी तौर पर चाहते हैं कि वो स्पेस में हम आगे बढ़ें, और जैसे कि आज हम टेबल पढ़ना चाह रहे हैं पूरे अल्फ़ाबेट की, तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स अज जो जुमलो, आज का जुमला बजाते खुद जो है, ये जो हम रोजाना का सेगमेंट करते हैं सेंटेंस ऑफ द डे, तो ये जो दरमियान में लिखा हुआ है अज जो जुमलो, यू कैन नोट इट डाउन कि अज जो यानी आज का जुमला को सिंधी में क्या कहते हैं?
आज का जुमला को सिंधी में अज जो जुमलो कहते हैं। सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई डोंट नो हु इज नॉट अनम्यूटेड, एंड अगर मैं फिर ये म्यूट करने के उसमें लग गया तो फिर ये काम रह जाएगा। चलिए जी, अज जो जुमलो, आज का जुमला, तो ये क्लियर है कि आज को सिंधी में अज कहते हैं, का को सिंधी में जो कहते हैं, जुमला को सिंधी में जुमलो कहते हैं। अज जो जुमलो, व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ द डे? अज जो जुमलो कहिड़ो आहे? हम ग्रीटिंग की बात कर रहे थे। द लास्ट डे वी वर लर्निंग अबाउट हाउ टू ग्रीट द न्यू ईयर, सिंस दैट वाज न्यू ईयर, स्टिल इट्स न्यू ईयर बट इट इज द सेकंड डे। सो जाहिर सी बात है कि पहले दिन हमने भली करे आया सीखा था। कोई आता है आपके पास तो आप उसका खैर मकदम करते हैं। आफ्टर खैर मकदम व्हाट विल यू आस्क हिम और हर? आप उनसे क्या पूछेंगे? तो आप यकीनी तौर पर पूछेंगे कि आप कैसे हैं। ठीक है, पहला सवाल ये होगा आप कैसे हैं। तो उसको सिंधी में कैसे बोला जाता है? I hope you all have a pen and a notebook as I requested you on day one, and I think I should not repeat the request again and again. So note it down. जो भी नई चीज है उसको नोट करते जाएं। और बेहतरीन तरीका ये होता है कि देखिए मेरे पास भी नोटबुक है, तो उस नोटबुक में ऊपर डेट लगाता हूँ, डेट और टाइम लगाता हूँ कि किस डेट पर किस टाइम पर कौन सी चीज हुई जो मैं आपसे सीखता हूँ या आपके क्वेश्चंस और फीडबैक्स जो आते हैं, तो मैं भी इसको मैन्युअली नोट करता हूँ आज तक भी। एक्सेल शीट्स हों, डिजिटलाइज्ड नोट्स हों, डिजिटलाइज्ड चिट्स हों, स्टिकी नोट्स हों, कुछ भी हों, लेकिन जो नोटबुक पर नोट करने का मजा है वो इसलिए कि जब महीनों बाद आप उसको दोबारा पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है किस तारीख पर आपने कौन सी चीज सीखी थी। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप पढ़ते हैं सवाल की सूरत में, आप कहते हैं यार 6 महीने पहले मुझे इस बात का इल्म नहीं था और मैं अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ रहा था, तो वो आपको अपनी इंप्रूवमेंट के पेस का भी पता चलता है। तो आप कैसे हैं, ये कैसे आप सिंधी में कहेंगे? आप सिंधी में कहेंगे तव्हां कीअं आहियो। एक तो उसकी शेप देख लें जिस तरह से लिखा हुआ है, यानी अल्फाज, एक तो उसको फोनेटिक्स होते हैं, बोलते कैसे हैं, दूसरा उसका इमला होता है भी उन जी सूरत ख़ती हूंदी आहे त उहो लिखबो कीअं आहे। ठीक है, ॿ सूरत होन, करें जीअं फ्रेंच में खोड़ सारा लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि, स्पेनिश में खोड़ सारा लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि, टर्किश में खोड़ सारा लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि, ऐं इटालियन में खोड़ सारा लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि जेके लिखबा कुझु आहिनि, पढ़बा कुझु आहिनि। उनमें खोड़ सारा अखर साइलेंट हूंदा आहिनि। अंग्रेज़ी में भी आहे त नाइफ खे तव्हां लिखंदा कि नाइफ आहियो, पर पढ़ंदा आप लिखते कि नाइफ हैं, लिखते कि नॉलेज है, पढ़ते आप नॉलेज हैं, क्योंकि के उसमें साइलेंट होता है। तो उसकी लिखने वाली शेप जो है उसको भी ध्यान में रखें। तव्हां कीअं आहियो, ते वाव हे अलिफ नून, अगेन नून इज गुन्ना, नून इनमें घुणो आ। और मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल पार्टिसिपेट नहीं किया था तो कल वाली क्लास में बताया था, सिंधी में गुन्ना बोलने में तो होता है लेकिन लिखने में नहीं होता। लिखने में उसको वैसे ही लिखेंगे जिस तरह से आम नून लिखी जाती है, यानी उर्दू में जैसे गुन्ने को हम बगैर नुक्ते के ज़ाहिर करते हैं, लेकिन उर्दू में बगैर नुक्ते के ज़ाहिर करते हैं, सिंधी में गुन्ना भी नुक्ते के साथ ही होता है। तव्हां, दिस इज तव्हां कीअं आहियो, ते वाव हे अलिफ नून, तव्हां मीन्स आप, तव्हां कहते हैं आपको, कीअं मीन्स हाउ, कैसे। इसमें भी जो आखिरी नून है वो गुन्ना है। दोनों पहले अल्फाज में आखिरी नून गुन्ना है। काफ ये हमजा नून, काफ ये हमजा नून, ये की न नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये गुन्ना है। ये तव्हा न नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि नून गुन्ना है, ये घुणो आहे। सिंधी में गुन्ना के घुणो पढ़बो आहे। तव्हा मीन्स यू, कीअं मीन्स हाउ, अंग्रेजी में हाउ पहले आएगा, उर्दू और सिंधी में हाउ दरमियान में आएगा, क्योंकि आखिरी जो हमारे यहाँ लफ्ज होता है उर्दू में भी और सिंधी में भी वो वर्ब होता है, वो फेल होता है। आहियो, हमजा अलिफ हमजा, उसके बाद हे, उसके बाद ये, उसके बाद वाव। तव्हां कीअं आहियो, हाउ आर यू। दिस इज सेंटेंस ऑफ द डे। जब आप किसी को ग्रीट करेंगे तो पहले आप भली करे आया कहेंगे या भली कार कहेंगे। नया साल है तो 9 साल मुबारक कहेंगे, जिस तरह से कल हमने नए साल जो वाधायूं आपको बताया था, या 9 साल मुबारक, आप वैसे कहेंगे। और उसके बाद आप कहेंगे तव्हां कीअं आहियो, यानी आप कैसे हैं, हाल चाल पूछेंगे तो पहला जुमला ये होगा तव्हां कीअं आहियो। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से पहले, अल्फ़ाबेट पढ़ने से पहले आपको बताऊं, सिर्फ एक छोटी सी पीस ऑफ नॉलेज, रादर पीस ऑफ डेटा।
वो ये है कि वो कौन कौन सी जुबानें हैं कि जो पर्शियो अरबिक स्टाइल में लिखी जाती हैं। वैसे तो बेशुमार जुबानें हैं, क्योंकि बहुत सारी जुबानें देवनागरी स्क्रिप्ट में लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, हिंदी के स्टाइल में लिखी जाती हैं। ये बात याद रखिएगा कि स्क्रिप्ट कुछ और चीज है, जुबान कुछ और चीज है। जुबान और स्क्रिप्ट में फर्क होता है। जिस तरह से पंजाबी जो है वो फारसी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, खासतौर पर हमारे पाकिस्तान के पंजाब में फारसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उर्दू की तरह लिखी जाती है पंजाबी। आप हीर बारिश शाह अगर पढ़ेंगे तो पंजाबी उर्दू वाली पंजाबी में लिखी हुई है। लेकिन अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो वेस्ट पंजाब है, जो कि इंडिया के बॉर्डर के अंदर पंजाब है, वहां पर गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। बोलने में वही पंजाबी है, बोलने में वही पंजाबी है, लेकिन उसको गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और हमारे यहाँ उसको शाहमुखी स्क्रिप्ट कहते हैं। जो पर्शियो स्क्रिप्ट है उसको शाहमुखी स्क्रिप्ट कहते हैं पंजाबी में, यानी जो हमारे यहाँ लिखी जाती है। हीर वारिस शाह वहां पर भी छपी है, लेकिन वहां पर गुरमुखी स्क्रिप्ट में छपी है। वहां पर गुरु ग्रंथ साहब गुरमुखी स्क्रिप्ट में होगा, और यहाँ पर सिखों की ये मुकद्दस किताब जो है वो यहाँ पर शाहमुखी स्क्रिप्ट में होगी, यानी उर्दू या पर्शियन स्टाइल में होगी। इसी तरह से सिंधी पाकिस्तान के अंदर उमूमी तौर पर पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, यानी जुबान सिंधी है लेकिन उसका स्क्रिप्ट पर्शो अरबिक है, जो हम 2-3 दिनों से बात करें। तो स्क्रिप्ट जेके पाण सिंधीअ में लिपि चवंदा आहियूं, स्क्रिप्ट खे पाण सिंधीअ में लिपि चवंदा आहियूं, यानी लिखण जी शक्ल ऐं ॻाल्हाइण जी शक्ल बि आहे। तो सिंधी को बॉर्डर पार पार अगरचे अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है, लेकिन वहां पर देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है। देवनागरी स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, यानी सिंधी भी 2 स्टाइल्स में लिखी जाती है। इसके हवाले से तफसील आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बयान करेंगे, लेकिन फिल वक्त सिर्फ एक पीस ऑफ नॉलेज इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताता चलूं कि वो कौन कौन सी जुबानें हैं जो अरेबिक या पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। उसमें बजाते खुद फारसी, और फारसी भी है, दरी भी है, ये 2 अलग अलग जुबानें हैं। तो ये दरी और फारसी दोनों इस स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, जिसमें अलिफ बे से मिलते जुलते हरूफ ताजी हैं। जैसे मैंने कल कंपैरिजन पेश किया था आपकी खिदमत में 1 जनवरी वाले लेक्चर में कि अरेबिक वर्सेस सिंधी कौन कौन से हरूफ सेम है, और अरेबिक सिंधी वर्सेस पर्शियन कौन कौन से हरूफ सेम है। उसके साथ साथ मलय यानी जवी लैंग्वेज जो है वो इसी स्टाइल में लिखी जाती है, और कुर्दिश इसी स्टाइल में लिखी जाती है। पंजाबी की शाहमुखी स्क्रिप्ट जो पाकिस्तान के पंजाब में लिखी जाती है, और टेक्स्ट बुक्स हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसमें पंजाबी हमारे यहाँ शाहमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। पंजाबी भी शुमार होती है, खासतौर पर पाकिस्तान में लिखे जाने के हवाले से पर्शियो या अरबिक स्टाइल में। सिंधी तो लिखी ही जाती है, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया कि सिंधी देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है कुछ इलाकों में सरहद के उस पार। वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी जो वहां पर उल्लासनगर में है, वो जो स्क्रिप्ट प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, वो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में ही करता है। इसलिए कि ज्यादातर लिटरेचर हमारे यहाँ जो लिखा गया है या छपा है पिछले 200-300 सालों में, खासतौर पर जब से प्रिंटिंग प्रेस आया है अंग्रेज के जमाने के बाद से, ब्रिटिश इरा के बाद से, तो जो पब्लिश लिटरेचर है ज्यादातर वो हमारे यहाँ पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में है। इसलिए वहां पर भी उसको खासतौर पर लिखत पढ़त के लिहाज से सरहद पार भी सिंधी को अरेबिक पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट में भी वहां पर लिटरेचर मौजूद है। तो सिंधी के अलावा बल्ती है, बलोची है, पश्तो है, लूरिश है, लूरी जुबान है, उर्दू है, कश्मीरी है, रोहिंग्या जुबान है, सोमाली जुबान है, और मंडिनका जुबान है। ये तमाम जुबानें, और इसके अलावा बहुत सारी जुबानें ऐसी हैं जो पर्शियो अरबिक स्टाइल में लिखी जाती हैं, और यानी अरबिक और पर्शियन के इम्तिजाज से, उन दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके इम्तिजाज से लिखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन इंडिया सम पार्ट्स ऑफ इंडिया by some institutions of India, Sindhi is also written in Devanagari script, देवनागरी लिपि, देवनागरी रस्मुल खत, ठीक है, उसमें भी लिखी जाती है। लेकिन ज्यादातर लिटरेचर, खासतौर पर ये लैंड है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हर लैंग्वेज की एक लैंड होती है, तो सिंधी की जो लैंड है, सिंधी की जो सरजमीन है जिसमें उसकी रूट्स हैं, वो सिंध है। तो यहाँ पर पिछले 200-300 सालों से सिंधी उसको पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में ही लिखा जा रहा है, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट भी एग्जिस्ट जरूर करता है। तो ये आपको जहन में होना चाहिए। तो लैंग्वेज अलग चीज हो गई, स्क्रिप्ट अलग चीज हो गई। मैं आपको नमूने के तौर पर दिखाता हूँ कि ये सिंधी के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए। ये मुख्तलिफ सिंधी के अल्फाबेट्स हैं, मुख्तलिफ। ये काफ है, ये खे है, ठीक है, ये खे की दूसरी शक्ल है, ये गाफ है, गे है, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ शक्लें। ये झे है, ये जो है ये झे है, ये ते है, ये थे है,
ये डाल है। तो ये मुख्तलिफ हरूफ जो हैं ये सिंधी में लिखे हुए हैं, लेकिन इसका स्क्रिप्ट अलग है जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि सरहद के उस पार कुछ इलाकों में और कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इसमें लिटरेचर लिखा और पब्लिश किया जाता है। लेकिन ज्यादातर वहां से भी जो मैगजीन्स अब भी पब्लिश होते हैं वो पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट में ही होते हैं, जो भी सिंधी में पब्लिश होते हैं। कल का रिवीजन, एक स्लाइड के सिंधी के हरूफ इल्लत जो हैं, वॉवल्स जो हैं वो 3 हैं, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं, और 49 जो है वो उसके हरूफ सही हैं यानी कॉन्सोनेंट्स हैं। वो कौन से हैं? अलिफ, वाव और ये। ठीक है। मैंने जो हेडलाइन कल बयान की थी उसके हवाले से तफसीली न्यूज़ हम इस अल्फ़ाबेट की पट्टी के बाद, अल्फ़ाबेट की टेबल के बाद हम उसको रिवाइज करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो कल मैंने एक रिवीजन दिया था, सिर्फ एक रवानी से मैंने आपकी खिदमत पेश किया था। पाण रवां करे पढ़ी आयासीं त असां वटि अलिफ बे कहिड़ी आहे, जेतोणीक असांजा सिंधी ॻाल्हाईंदड़ चवंदा त हीअ त सभु कुझु असांखे यादि आहे, अज़बर आहे, बिल्कुलु आहे तव्हांखे यादि, पर पाण सिखूं पिया उन्हनि सां गॾु जिनजी इहा मादरी ॿोली कान्हे का। ज़ाहिर आहे त उन्हनि खे पाण सां गॾु खणी हलणो आहे, ऐं हिन सॼे सफ़र में विच विच में के शयूं अहिड़ियूं अचनि थियूं which are new for you, which are newest for you, and you are in process of that learning. So overall, ये मैंने आपको बताया, this alphabet chart is produced by Sindhi Language Authority officially, and उसको अगर एक एक हर्फ को हम देखना शुरू करेंगे तो हर हर्फ के साथ उसकी एक शक्ल है। ठीक है, यानी उससे शुरू होने वाले एक किसी लफ्ज की, किसी प्रॉपर नाउन की शक्ल है, ताकि उसको समझने में आसानी हो, जिस तरह से आप उर्दू में भी पढ़ चुके हैं। एज वी लर्न इन इंग्लिश ऑल्सो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई, सी फॉर कैट और सी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और डी फॉर डॉक्टर, एफ फॉर फ्लैग और एफ फॉर फ्रांस, फ्रांस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फॉर लर्निंग, फॉर इजी लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने रिवाइज किया था, अब एक एक हर्फ पर हम बात करते हैं, और जैसे ये हरूफ पूरे होंगे तो फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके हवाले से नोट करते जाएं। अंग्रेजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, होल्ड योर थॉट। तो डिस्कशन के दौरान यू हैव टू होल्ड योर थॉट, यानी ऐसा नहीं है कि जो सवाल जिस वक्त आए आप उस वक्त करें, होल्ड योर थॉट, और जब वो डिस्कशन कहीं किसी पॉज पर पहुंचे या किसी जहां पर मुनासिब मौका हो तो वहां पर वो सवाल कीजिए। एंड दिस इज द डिसेंट वे टू पुट फॉरवर्ड योर क्वायरीज। ओवरऑल आप किसी भी ग्लोबल बैकग्राउंड पर हो, जिस तरह से हम पूरी दुनिया को ग्रीट करते हैं, तो दिस इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म where the people from various parts of the world, of the globe, are participating to learn this language. So this is alif, and alif के साथ जो है, जो शक्ल, जो छवि आप देख रहे हैं वो आंख की है। ठीक है, आंख, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 52 हरूफ आप नए 52 हरूफ के साथ 52 अल्फाज भी आप नहीं सीखेंगे। तो आंख को सिंधी में अख कहा जाता है, अलिफ और खे, और आपको पता है कि खे किस तरह से लिखा जाता है, अख। ठीक है, अख, अलिफ, अख, दिस इज अलिफ। मैंने नीचे उसकी प्रोनाउंसिएशन भी दी है कि उसको हाउ डू वी प्रोनाउंस, इंग्लिश में नीचे लिखा गया है कि यानी उसको कहते क्या है। इस अलिफ को, अलिफ लिखा इस तरह से जाएगा, लेकिन ये जो है उसकी वजाहत है कि इसको पढ़ेंगे हम अलिफ, बिल्कुल उर्दू की तरह, अरबी की तरह, फारसी की तरह। दिस इज अलिफ। अलिफ स्टैंड्स फॉर, इट इज यूज्ड टू प्रोनाउंस ए की प्रोनाउंसिएशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये तो खैर एक सिंपल है क्योंकि उर्दू में भी ए के प्रोनाउंसिएशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जब हम सिंधी कीबोर्ड पर लिखते हैं कंप्यूटर पर, तो अलिफ लिखना होता है तो ए को ही प्रेस करते हैं। अरबी में भी, फारसी में भी, उर्दू में भी अलिफ स्टैंड्स फॉर ए एंड इट इज रिटन एज अलिफ। और जैसे कि मैंने अंग्रेजी में भी नीचे वजाहत लिख दी है, तो अलिफ, अलिफ स्टैंड्स फॉर ए, और उसकी अलामत के तौर पर दी गई है आंख, जिसको सिंधी में अख कहा जाता है, अख। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज बे, और बे यहां पर उसकी पहली शेप है कि बे लिखा इस तरह से जाएगा, बे पढ़ा इस तरह से जाएगा। ये जो दूसरी ब्रैकेट में शेप है, बे पढ़ा इस तरह से जाएगा, नीचे उसकी इंग्लिश में वजाहत है। ये स्लाइड्स आपको बाद में मिल जाती हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो बे स्टैंड्स फॉर बी, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बे का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बत्तख छपी हुई है, उसको उर्दू में बत्तख कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बत्तख इन उर्दू, डक इन इंग्लिश, बट इन सिंधी वी कॉल इट बद्दक। बे, दाल, काफ। लेकिन आपको पता है काफ हम किस तरह से लिखते हैं? काफ उर्दू में लिखने का अंदाज अलग है, सिंधी में उर्दू वाले काफ की तरह सिंधी में खे लिखते हैं। तो दिस इज बद्दक, बे बदक, अलिफ अख, बे बदक। This is written as Bay. This is called as Bay. This will be
जब हम कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये बे लिखा हुआ है, विच रिप्रेजेंट्स बे, बी। मूविंग फॉरवर्ड, बे से ही एक इंडिजीनियस हर्फ निकला है जो कि सिर्फ सिंधी के पास है, और वो है बे। बे के नीचे एक नुक्ता लग जाएगा और इसको पढ़ेंगे हम इस तरह से, बे। और बे में जैसे मैंने आपको बताया था कि बे में सिर्फ दोनों होंठ मिलते हैं फोनोटिकली, लेकिन बे में उन होंठों के दरमियान से एक छोटा सा ब्लो निकलता है, छोटा सा ब्लो निकलता है, हल्की सी फूंक निकलती है, दैट इज बे, बे। ठीक है, बे। बे इज, उसको हम जब रोमन में लिखते हैं वजाहत के लिए तो डबल बी लिख देते हैं। डबल बी का मतलब ये कि इट स्टैंड्स फॉर बे, बे। ठीक है, बे। दिस इज रिप्रेजेंट्स डबल बी या बे। और सिंधी में बकरी को बकरी कहा जाता है, बकरी को बकरी कहा जाता है। इट स्टार्ट्स विद दिस लेटर बे, लेकिन काफ उसी तरह से आएगा जिस तरह सिंधी में लिखा जाता है, उर्दू में किसी और तरह से काफ लिखा जाता है। तो बे फॉर बकरी, बकरी इज बकरी, इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड गॉट, और सिंधी में इसको बे करके पढ़ते हैं, विच रिप्रेजेंट्स डबल बी। उसके बाद आता है एक ऐसा हर्फ, आखिर में बताऊंगा अल्फाबेट के बाद के ऐसे कौन से 12 हुरूफ हैं जो कि उर्दू और सिंधी दोनों में है, लेकिन अशकाल मुख्तलिफ, प्रोनाउंसिएशन सेम है उनकी लेकिन शक्लें मुख्तलिफ। तो अगेन, जुबान बोलने में फोनेटिकली अलग है और लिखने में कुछ अलग है। जो मैंने कल आपको बात की थी, हमने जो स्किल्स की बात की थी, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स, और रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए रीडिंग जरूरी है और स्पीकिंग के लिए लिसनिंग जरूरी है। 4 स्किल्स हमने बयान की थी, सिर्फ इसलिए बयान की थी कि उसको सुनना, उसको बोलना, उसके बोलने के लिए उसका सुनना और प्रॉपरली सुनना जरूरी है, उसको लिखने के लिए उसको प्रॉपरली लिखा होना, उसको पढ़ना जरूरी है। दिस इज भे। और भे को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल एंड में है। भे को आप उर्दू में ऐसे लिखते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं, यानी बे में 3 नुक्ते ऐड कर लें तो ये भे हो जाता है, भे। दिस कॉल्ड भे। अगर ये लिखा होगा तो आप कहेंगे ये क्या लिखा है, ये लिखा है भे, दैट रिप्रेजेंट्स बी एंड एच, जिस तरह से उर्दू में है। यानी हर्फ वही है जो उर्दू में भी है, जो सिंधी में भी है, लेकिन उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है और सिंधी में इसको इस तरह से लिखा जाता है। सिंधी में भे इस तरह से लिखा जाता है, उर्दू में भे इस तरह से लिखा जाता है। करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज ते, और ते उसी तरह से ही है जिस तरह से उर्दू में है, एज वी राइट इन उर्दू, ते, दिस ते। एंड मैंने आपको बताया कि ये भे जो है, भे स्टैंड, यहाँ पर जो शक्ल दी गई है इससे पहले वाले हर्फ में, वो है भोलड़ो। दिस इज भोलड़ो, जिसको उर्दू में बंदर कहा जाता है, उसको सिंधी में भोलड़ो कहा जाता है। वैसे इसमें तस्गीर है, वैसे भोलो इसका सही लफ्ज़ है, भोलो। और भोलो का मतलब है मंकी। ओके, दिस इज मंकी विच इज कॉल्ड बंदर इन उर्दू। एंड भोलो और भोलड़ो, भोलड़ो यानी इसमें तस्वीर किसी चीज को और छोटा कर देना, किसी चीज को और छोटा कर देना, यानी किताब किताबचा, बाग बागीचा। तो ये जो है उसको सिंधी में ड़े उसके साथ इजाफा किया जाता है। बार मीन्स बच्चा, बारडो यानी और छोटा बच्चा, बोलो मीन्स बंदर, भोलड़ो मीन्स मासूम सा बंदर। तो दिस इज भोलड़ो और भोलो, which is represented by bhe. Then the next letter is te. Te is also in Urdu, which is written like this and which represents T or double T. डबल टी इसलिए डिफर करते हैं कि खाली टी जो है वो टे को रिप्रेजेंट करता है, टे, डॉक्टर वाली टे, ठीक है, टोपी वाली टे। तो खाली ते को इस तरह से रोमन में भी लिखा जाता है, और ते यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस शक्ल को जो है तारा। वैसे इसको सितारा भी कहा जाता है, लेकिन तारा, ते फॉर तारा। एंड दिस इज रिटन एज इट इज रिटन इन उर्दू, ते। ये भी वही सेम हर्फ है जिस तरह से उर्दू में कहा जाता है। ये है थे, यानी फोनेटिकली सेम है जिस तरह से थे, थैला, ऊपर छपा भी थैला हुआ है, यानी थैला, थैलीसीमिया, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। उर्दू में इसको इस तरह से लिखा जाता है जिस तरह से बिल्कुल राइट बॉटम पर लिखा हुआ थे। राइट बॉटम पर ग्रीन में वही हरूफ लिखे हुए हैं जिस तरह से उनको उर्दू में लिखा जाता है, और सिंधी में इसको इस तरह से लिखा जाता है, यानी आप बे वाले फॉर्मेट में ऊपर 4 नुक्ते लगा देंगे, या सवाब में 1 नुक्ता ऐड कर लेंगे, सवाब वाले से में 1 नुक्ता ऐड कर लेंगे तो थे बन जाएगा। दिस इज थे विच इज रिटन दिस वे इन उर्दू एंड दिस वे इन सिंधी। दिस इज थे। थे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी थैला, थैले की शक्ल जो है, बैग की शक्ल, विच इज कॉल्ड बैग इन इंग्लिश, दैट इज रिप्रेजेंटिंग थे हियर,
क्योंकि थैला जो है वो थे से स्टार्ट होता है। देन अगेन कम्स टे। टे उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है अगेन, यानी इसकी शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन इसका जो सौत है, इसकी जो आवाज है वो सेम है, टे। जिससे टोपी रिप्रेजेंट होती है, ये सिंधी टोपी है, यू नो। तो ये सिंधी टोपी है। टोपी आप अगर लिखेंगे उर्दू में इस तरह से लिखेंगे और उसमें ये में नुक्ते नहीं आएंगे, लेकिन सिंधी में लिखेंगे तो इसके साथ लिखेंगे, यानी सवाब वाले से को उल्टे फॉर्मेट में अगर आप उसके नुक्ते कर लें तो ये टे बन जाता है, टे। दिस इज टे which represents tea, written in Urdu like this, written in Sindhi like this, and this is topi, which represents the letter te, right? Now coming to te, and other letter which is written in Urdu also, लेकिन उनकी उसकी जो शक्ल है वो उर्दू में कुछ और है। ठीक है, ठे इस तरह से लिखा जाता है जिस तरह ठोकर है, ठाकुर है, ठोकर है। ठीक है, ठोकर न्याज बेग, ठाकुर, जिस तरह से आपने मुख्तलिफ अल्फाज पढ़े हैं। सिंधी में ये जो है एल्बो, एल्बो, दिस एल्बो, यानी इस कोनी को सिंधी में ठूठ कहते हैं, ठूठ, ठूठ, ठे वाव ठे। ठे इस तरह से लिखा जाता है। उर्दू में आप इसको इस तरह से लिखते हैं विच रिप्रेजेंट्स ठे, यानी टी और एच। वैसे टी और एच थे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, थैलेसीमिया वाले थे के तौर पर, लेकिन ठे को भी हम रोमन में इस तरह से लिखते हैं, इसको ठे बोलते हैं। और ठे जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, यानी अगर हम उसको सिंधी में लिखेंगे, ठूठ अगर लिखेंगे, यानी एल्बो के तौर पर लिखेंगे तो ठे वाव ठे लिखेंगे। तो ये जो उर्दू में लिखा हुआ हर्फ है उसको सिंधी में ठे इस तरह से लिखा जाता है, यानी हर्फ वही है लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ है। करीबन 30 सेकंड में हमारी ये जो पहला हिस्सा है वो वाइंड अप होगा। फौरन आपके साथ एक ग्रुप पर लिंक शेयर की जाएगी और आप ज्वाइन करेंगे हमारे इस मीटिंग के सेकंड पार्ट को 5:43 पर, सिर्फ 3 मिनट के गैप के बाद। दिस इज से विच इज रिटन एज से इन उर्दू। से जो सवाब या समर के तौर पर, ये समर दिखाया गया है, टमाटर छपा हुआ है, ये समर के तौर पर दिखाया गया है। समर, सब्र का, समर मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, समर का मतलब है fruit, which is called fruit in English. So this is a sort of fruit. Some people say it's a vegetable, but originally tomato is a fruit. So से उर्दू में वैसे लिखा जाता है जिस तरह से फारसी में और अरबी में लिखा जाता है, which represents All right, Ji, welcome to this second part of the class. And we were revising not revising really, but we were learning the alphabet, Sindhi alphabet. Sindhi alphabet जी जेका पट्टी आहे उहा पाण पढ़ी से पे ऐं उन में असां पहुता हुयासीं से ताईं। This is say summer, right? So I hope that this slide is visible to you. Everybody who has joined us in this class right now, जो कि क्लास के पहले हिस्से में नहीं थे, उनको भी वेलकम करते हैं, जो पहले हिस्से में थे उनका भी खैर मकदम करते हैं। तो ये था से, जैसे कि मैंने आपको बताया, which stands for summer. Summer means fruit. और इसको ये आपको पता है कि ये चंद हरूफ जो हैं, जिस तरह सीन, स्वाद और से, इसका मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। गो के कमोबेश इसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, which represents S, लेकिन जाहिर है कि जहाँ पर सीन इस्तेमाल होता है वहाँ पर स्वाद इस्तेमाल नहीं होता, जहाँ पर स्वाद इस्तेमाल होता है वहाँ पर सीन इस्तेमाल नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ उनके इस्तेमाल की जगह होती हैं और मुख्तलिफ हरूफ के इमला पर डिपेंड करता है कि कौन सा लफ्ज जो है वो कहाँ पर, यानी कौन सा सीन, कौन सा एस कहाँ पर से के तौर पर लिखा जाएगा, कहाँ पर सीन के तौर पर लिखा जाएगा, कहाँ पर स्वाद के तौर पर लिखा जाएगा। द नेक्स्ट लेटर इज पे। पे इज द सेम लेटर विच इज यूज्ड इन उर्दू। मैं इसलिए उर्दू को ज्यादा रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द students and learners who are opting Sindhi as a second language, they belong to Urdu language. Therefore, I am addressing to Urdu learners, Sindhi learners, of course, but who has Urdu as their first language. So I'm addressing to those. तो पे भी एक ऐसा हर्फ है जो कि फारसी में भी है, अरबी में नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अल पाकिस्तान लिखा जाता है, पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखा जाता है, लेकिन
फारसी में पाकिस्तानी लिखा जाता है और उर्दू में पाकिस्तान लिखा जाता है। दिस इज पे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है पगड़ी। सिंधी में सिर्फ उसको कहते हैं पग। पगड़ी भी चवंदा आहियूं पाण, पर अगेन पगड़ी इज इसमें तस्गीर। तस्गीर यानी किसी चीज को छोटा करना। किचन किचनेट, बुक बुकलेट, गार्डन गार्डनेट, कैबिन कैबिनेट। उर्दू इंग्लिश में उसको ईटी के तरीके से उसको छोटा किया जाता है। यानी किचन है बड़ा किचन, किचनेट यानी छोटा किचन, कैबिन बड़ा कैबिन, कैबिनेट छोटा कैबिनेट है। तो इसी तरह से पगड़ी जो है, वॾी पग जो नंढड़ो जेको आहे उहो जेको आहे सो तस्गीर आहे हुनखे। ॿार ॿारड़ो जीअं मूं तव्हांखे चयो, तारो तारड़ो। ऐं कंहिं शइ जी वैल्यू घटाइण जे लाइ या उनखे वधीक मासूम करण जे लाइ अदिड़ी, मूंखे मानीअ जो गबड़ो त ॾे। त हाणे गबड़े मां मतिलबु इहो आहे त उनखे तव्हां चओ त इहा का वॾी एॾी शइ कान्हे जेका तूं अफोर्ड न करे सघीं, ॾेई न सघीं, तंहिंजे करे उनखे अदड़ी, उनखे प्यार में वधीक चइबो। तो ये है पगड़ी यानी पग। सही लफ्ज है पग, सिंधी में उसको पग कहते हैं। ग ग आगे ये हर्फ आएगा तो पग। और पगड़ी जो है सर वो सर उसका। अस्सलाम वालेकुम। सर क्वेश्चन इन द लास्ट प्लीज, आई रिक्वेस्टेड यू, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी अर्जेंट टू आस्क? क्वेश्चन था जी सर, क्वेश्चन सर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अल्फाबेट्स पूरी कर लूं अपने फ्लो में, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। If you ओके don't सर। mind, please. Thank you. So this is pay, and this is pagdi or pagga. This stands. This represents P, and this is written as pay. इसकी शक्ल ऐसे होगी, कोई पूछेगा क्या लिखा हुआ तो आप कहेंगे this is pay, जैसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है pay. Then this is Jeem. Jeem stands for here. Jeem stands for J. और उसको हम जाहिर कर रहे हैं जहाज के साथ। जीम उर्दू में वैसे लिखा जाता है जैसे सिंधी में लिखा जाता है जीम। इंग्लिश में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको अगर हम रोमन में लिखेंगे तो जे के तौर पर लिखेंगे। और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहाज को। ये अगेन एन इंडिविजुअल लेटर विच बिलोंग्स टू सिंधी ओनली, जो फारसी में भी नहीं है, अरबी में भी नहीं है, उर्दू में भी नहीं है। जीम में एक नुक्ते का इजाफा, और ये हो जाएगा ये। मैंने आपको कल बताया था कि आपकी जुबान, आपकी टंग, आपके तालु के बिल्कुल एंड वाले हिस्से से लगेगी। ये फोनेटिकली ये जुबान विल टच द अपर पार्ट ऑफ योर, आपके तालु का ऊपर वाला हिस्सा, बिल्कुल दांत के इख्तिताम पर आप उसको टच करके कहेंगे ये। दिस इज ये, एंड दिस इज जिब, दिस इज जुबान। जुबान को सिंधी में जुबान भी कहा जाता है, लेकिन प्योर सिंधी में उसको जिभ कहा जाता है। जिभ, हालांकि पाण सिंधी में भी हाणे जिभ लफ़्ज़ घटि इस्तेमाल कंदा आहियूं, जुबान ही इस्तेमाल कंदा आहियूं। जुबान बोलने वाली जुबान भी होती है, लैंग्वेज भी होती है, लेकिन जुबान इज टंग टू। ये टंग जो आप देख रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रही है ये को, तो जिभ। ये और भे को हम मिलाएंगे तो जिभ हो जाएगी, विच इज टंग, विच इज जुबान। जुबान को सिंधी में जुबान भी बोला जाता है, लेकिन प्योर सिंधी में या क्लासिकल सिंधी में इसको जिभ कहा जाता है। तो उसको जब हम रोमन में लिखते हैं तो डबल जे लिखते हैं, ताकि फर्क महसूस हो जे में और ये में फर्क महसूस हो। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। पाण सिंधी में जट भी चवंदा आहियूं। जाहिल को या कम इल्म को जट कहा जाता है, ये से स्टार्ट होता है, वही यही वर्ड यही लेटर है ये। उसके बाद टे का इजाफा होता है। वाजट, वाजट पाण चवंदा आहियूं। बाजगश्त को या किसी चीज के गूंजने को वाजट कहा जाता है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। ये से स्टार्ट होने वाले भी और ये को इस्तेमाल करने वाले भी बहुत सारे हरूफ हैं। तो ये जिभ है। जिभ मीन्स टंग, राइट। झे इज यूज्ड एज इट इज इन उर्दू। सिर्फ सिंधी में लिखने में उसमें एक छोटी सी दुम का इजाफा किया जाता है अगर हम खाली झे लिखते हैं। ये भी विसरग और अविसरग ही अचनि था, जेको पहिरें ॾींहुं तव्हांखे ॿुधायो हुयो त झे लिखण जे तरीक़े में फ़र्क़ु हूंदो आहे। त ही जेको झे आहे, दिस रिप्रेजेंट्स झे, और उसको हम रोमन में इस तरह से लिखेंगे जे और एच। झे। झार सिंधी में खोड़ सारा लफ्ज़ हैं। झिरकी, दिस इज झिरकी। हम चिड़िया को सिंधी में झिरकी बोलते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कमोबेश 51 न्यू वर्ड्स हैं जो आप सीखेंगे। तो चिड़िया को सिंधी में झिरकी कहा जाता है, वो स्टार्ट्स विद जे। और यहाँ पर सिंधी में झे एक कंप्लीट लेटर है। कंप्लीट लेटर है। ये दो लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट लेटर है। जे, जे विच स्टार्ट्स, मतलब जैसे झिरकी ये झार आहे सिंधीअ में। ऐं जीअं इहो झरोको आहे, जैसे उर्दू में झरोका है, लेकिन उर्दू में भी दो हरूफ का ये मिक्सचर है, ये मुरक्कब है, उसके बाद ये झे बनता है। लेकिन सिंधी में अलग से ये एक हर्फ है।
और उर्दू की तरह इस्तेमाल होता है। बहुत सारे अल्फाज उर्दू में भी हैं जो कि जे को इस्तेमाल करते हैं, और यकीनी तौर पर उसका इस्तेमाल सिंधी और उर्दू में सेम ही है, और उसको रोमन में जे और एच के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज न्ये, अगेन अ यूनिक प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम सिंधी लैंग्वेज। न्ये, जीम में एक नुक्ते का इजाफा, लेकिन उसके साथ पहले ये में हम ऊपर नीचे हरूफ लिख रहे, नुक्ते लगा रहे थे, लेकिन इसमें हम एक साथ नुक्ते लगाएंगे, तो ये हो जाएगा न्ये। न्ये, न्ये में जुबान लहराएगी दोनों तालुओं के दरमियान, न्ये न्ये। अब न्ये और न्ये ये दोनों मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन हैं। न्ये आगे आएगा जिसके साथ सिंग, सिंग हम लिखते हैं, और दिस इज रोप, रस्सी, और खासतौर पर वो रस्सी, खास वाण, मुन्य जैसा पाण, खट्ट वाणीदा हूं, जिसके साथ चारपाई को निट किया जाता है, चारपाई की निटिंग की जाती है, उसको खास उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसको मुन्य कहा जाता है। तो उसको आप उर्फ आम में रस्सी कह सकते हैं, या वो मटेरियल के जिसके साथ चारपाई की बुनत की जाती है, चारपाई को निट किया जाता है, उसको मुन्य कहा जाता है। यानी न्ये से स्टार्ट होने वाला कोई भी हर्फ हमारे पास नहीं है, लेकिन हम मुन्य को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो स्टार्ट तो मीम से हो रहा है, लेकिन उसमें न्ये इस्तेमाल हो रहा है। तो एक यूनिक लेटर है, बहुत कम अल्फाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन लेटर अपनी जगह पर है। मंजण, सिंधी में किसी को मानना, मैं तुमको मानूंगा, मैं तुमको बहुत बड़ा पहलवान मानूंगा अगर तुम फलां को पिछाड़ दो अपने मैदान में, तो उसको सिंधी में कहते हैं मंजण। या किसी की बात मानना, तुम मेरी बात मान लो, उसको मंजण कहते हैं। मीम के बाद ये हर्फ आएगा दरमियान में, उसके बाद मसदर के तौर पर आखिर में नून आएगा, मंजण। तो ये, इसको रोमन में रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगेन जे की तरह हम उसको डबल जे लिखते हैं ताकि फर्क महसूस हो। मंजण खाली जे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग खाली जे लिखते हैं टेक्सटिंग में, लेकिन डबल जे लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि या तो ये लिखा जा रहा है या तो न्ये लिखा जा रहा है, न्ये। यानी ये जुबान लहराएगी दोनों तालुओं के दरमियान, लेकिन स्लाइटली ऊपर वाले तालु के साथ हल्का सा टच करके, और फिर इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा न्ये। और ये प्रेजेंट करा इसको, इसको कहते हैं मुन्य। मुन्य मीन्स वो मटेरियल कि जिसके साथ चारपाई की बुनत होती है। अब तो चारपाई की प्लास्टिक के साथ बनत हो रही है, प्लास्टिक की जो पट्टी आ रही है उसके साथ बनत हो रही है, लहवार जगह पाण चौथा। पर पुरानी हूँ जेके खटू वाणजन थी, पुराने दौर में जो चारपाइयाँ उनकी बुनत होती थी, जो सराइकी दोस्त हैं, जो पंजाब से दोस्त हैं, जो इवन कराची के दोस्त हैं, वो जानते हैं कि इस तरह के खास रस्सी के साथ या पतली रस्सी के साथ उसकी बुनत होती थी। अब तो हर चीज सहल पसंदी की तरफ चली गई है, तो उसको हम प्लास्टिक की पट्टियों के साथ, पहले कपड़े की पट्टियों के साथ उसको चारपाई की बुनत होती थी, अब तो वो चारपाई भी नहीं रही लकड़ी वाली, अब तो पाइप वाली चारपाई आ गई है, तो चीजें बदल गई। चलें जी, उसके बाद आता है चे। अब चे की हम बात करते हैं, तो चे है चांद, और जलील साहब थैंक यू फॉर एग्रीइंग। चांद, ये है चांद, और चांद कैसे लिखा जाता है, चंदा कैसे लिखा जाता है, चुंधियाना कैसे लिखा जाता है, चे से लिखा जाता है। ये कोई ऐसा हर्फ नहीं है जो उर्दू या पंजाबी या सराइकी, जो कि हमारे पास दोस्त मौजूद हैं, और सिंधी में मुख्तलिफ सेम ही है, चे उसी तरह से इस्तेमाल होता है। ये चे अरबी में नहीं है, फारसी में भी है, उर्दू में भी है, सराइकी में भी इस्तेमाल होता है, पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। तो ये चे है जिसको हम CH के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं रोमन लिखते हुए। ये चीज लिखना जरूरी है क्योंकि ये जो मैंने ब्लू में लिखा है, इसलिए लिखना जरूरी है ताकि पता चले कि उसको रोमन में कैसे लिखा जाता है, उसका स्टाइल रोमन में लिखने का कैसा है। क्योंकि बहुत सारे चीजें, बहुत सारे पैगामात हम रोमन में लिखते हैं, और खासतौर पर टेक्सटिंग जब करते हैं तो रोमन में करते हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस लफ्ज को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, खासतौर पर रोमन में। तो ये चे है, चे इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, सिंधी में ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, उर्दू में आप छोटी बड़ी ये लगाएंगे चे। यानी ये भी है कि सिंधी में छोटी है और बड़ी है दोनों के लिए यही है इस्तेमाल होती है। उर्दू में आपको पता है कि जबर वाले प्रोनाउंसिएशन के साथ बड़ी ये आती है, वैसे ही छोटी ये आती है बगैर नुक्तों वाली, लेकिन सिंधी में दोनों के लिए एक ही ये इस्तेमाल होती है जो नुक्तों वाली है। तो ये चे है, चे स्टैंड्स फॉर चांद। और चांद के बाद कानूनन तो सूरज आता है, लेकिन यहाँ पर छतरी आ गई क्योंकि 6 का हम जिक्र कर रहे हैं, और 6 को हम उर्दू में इस तरह से लिखते हैं। और 6 से छतरी भी होती है, 6 से 36 भी होता है, 6 से छत्तीसगढ़ भी होता है, जहाँ से हमारे लर्नर रविशंकर पांडे जी हैं, वो छत्तीसगढ़ से हैं, तो 36 ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये 6 जो है
ये सिंधी में ऐसा लिखा जाता है। इंग्लिश में गो के रोमन में CHH उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम सिंधी में, वैसे उर्दू में चित्रौल भी होता है छे के साथ इंग्लिश उर्दू में इसको ऐसे लिखा जाता है, चे और छे के मिलाप के साथ एक मुरक्कब लफ्ज बनता है, हर्फ बनता है, हिकिड़ो गॾियल हर्फ ठहंदो आहे, गॾियल अखर ठहंदो आहे, पर असां हुनखे सिंधीअ में छे ईअं लिखंदा आहियूं। यानी चांद में, चांद के चे में जो है वो एक नुक्ते का इजाफा कर लें तो वो छे हो जाता है। छे छतरी, सिंधी में छतरी को छतरी बोलते हैं। छत्र इज अनदर थिंग, छतरी इज अनदर थिंग। तो छतरी मीन्स अम्ब्रेला, छतरी इज अम्ब्रेला, छतरी जिसको कहा जाता है। तो छतरी उसमें सिंधी में कैसे लिखा जाएगा, छे और टे, जो मैंने आपको बताया टे की शक्ल अलग है, उर्दू में तुर्रे के साथ है, सिंधी में तीन नुक्तों के साथ, उसके बाद ये आ जाती है उसमें, राइट जी। उसके बाद है, हलीम वाली है, और ये यहाँ पर हजाम छपा हुआ है, सिंधी में हजाम को हजम कहते हैं, हजाम भी कहते हैं लेकिन हजम कहते हैं। तो ये है, हलीम वाली है जो है, इस हे को लिखा ऐसे जाता है, यानी प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, HAY, और रोमन में हम उसको H के तौर पर लिखेंगे। दोनों हे को हम H के तौर पर लिखते हैं। तो ये हलीम वाली है, हे हजम उसको हम सिंधी में कहते हैं। उसके बाद आता है खे खच्चर, ये खच्चर छपा हुआ है, और ये खे है जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, जो कि अरबी में भी इस्तेमाल होती है, जो कि फारसी में इस्तेमाल होती है। लिखा उसको इस तरह से, प्रोनाउंस इस तरह से किया जाता है, और रोमन में उसको खे यानी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है खे खच्चर। उसके बाद है दाल दुहल, ढोल को सिंधी में दुहल कहते हैं। दाल हे लाम, दाल हे लाम, बबांगी दहल आपने सुना होगा। वैसे उसका तो ताल्लुक दहलने से है, दिल दहल जाने से, लेकिन ये तमाम एक दूसरे के साथ लाज़म मलजूम है। यानी उसकी धनक कैसी होती है, उसकी खनक कैसी होती है, नॉट धनक, धनक इज रेनबो, उसकी खनक कैसी होती है तो कि उसके साथ दिल दहल जाता है। तो ये दाल है जो कि उर्दू में मुस्तामिल है, तमाम जुबानें, जैसे मैंने कहा, सराइकी में भी है, पंजाबी में भी है, अरबी में भी है, फारसी में भी है, दाल। और दिस रिप्रेजेंट्स दुहल लिखा जाता है, यानी डी को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोला ऐसे जाएगा दाल, दिस इज दाल दुहल। दाल दरवाजा भी होता है, दाल से सिंधी में दरी, जिसको खिड़की जो है, खिड़की को सिंधी में दरी कहा जाता है, तो वो भी रिप्रेजेंट होते हैं दाल के साथ। दिस इज धाल, और ये छपा हुआ है धोबी, धाल धोबी, धाल या धे, धाल धोबी। उर्दू में इसको इस तरह से लिखा जाता है, दाल और हे के इम्तिजाज के साथ, दाल और हे मिलाकर एक मुरक्कब हर्फ बनता है, जिसको ध बोला जाता है। और सारेगामा पा धा नीसा, वो ध जो है धन, दौलत को धन कहा जाता है। तो ये धन जो है वो सिंधी में ऐसे दाल के ऊपर दो नुक्ते लगते हैं, सिंधी में ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में इसको ऐसा लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है डी और एच को। जब हम इसको रोमन में लिखते हैं तो डी और एच के तौर पर लिखते हैं, और इसको पुकारते ऐसे हैं, धाल पुकारते हैं, और सिंधी में इसको ऐसे पुकारा जाएगा, दिस इज धाल धोबी। देन दिस इज डाल डेडर, ये मेंढक है जिसको सिंधी में डेडर कहा जाता है, डेडर। अगेन इसमें ऊपर वाले तालु के साथ हम कस के जुबान उसको टच करेंगे, डेडर, डेडर, ऊपर वाले तालु के साथ ये जुबान टच होगी तालु के साथ, और ये प्रोनाउंसिएशन निकलेगा डेडर, डेडर, डेडर इज मेंढक। दिस इज डाल, और उसको मुश्किल है उसमें लिखना, रोमन में लिखना, लेकिन हम DH के तौर पर उसको, या कभी कभार डबल डी के तौर पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज, इसको पढ़ेंगे डे, डे, दिस इज डे, डेवट। सिंधी में एक लफ्ज है डेवट, यानी लेना देना, लेन देन को कहा जाता है डेवट, डेवट। वट्टे सट्टे को भी डेवट कहा जाता है सिंधी में, हिनन पाण में डेवट कही है, यानी वट्टे सट्टे की शादी हुई है उसको डेवट कहा जाता है। अगर पैसों की लेन देन है तो उसको भी डेवट कहा जाता है, डेवट, डे यानी दो, वट यानी लो, तो ये लेन देन को कहा जाता है। तो ये भी डाल से शुरू होता है, दिस इज डाल, डेडर एंड अदर इंडिजीनियस प्रोनाउंसिएशन एंड इंडिजीनियस लेटर फ्रॉम सिंधी लैंग्वेज। दिस इज डाल, जिसको उर्दू में ऐसे लिखा जाता है डाल, डोली, डाली, दरख्त की डाली होती है जिस तरह से, डोली होती है, डॉल, जिसको गुड़िया को इंग्लिश में डॉल बोला जाता है, तो डॉल। तो ये डाल ऐसे लिखा जाता है सिंधी में, सिंधी में दाल के नीचे एक नुक्ता लगता है तो वो डाल बन जाता है, और उसको पढ़ते डे हैं, डे, डे या ड्रे। जो नॉर्दर्न सिंध है उसको ड्राल यानी डे के साथ हल्के से रे के प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ा जाता है, और जो लोअर सिंध है
जो साउदर्न सिंध है उसमें उसको डाल पढ़ा जाता है। वैसे ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन जो है वो है डाल। और ये छपी हुई है मोरनी, और मोरनी को ड्रेल कहा जाता है। गो कि ये मोर छपा हुआ है, मोरनी के पर इतने बड़े नहीं होते, तस्वीर में इलस्ट्रेशन में चेंजिंग होनी चाहिए। ड्रेल कहते हैं मोरनी को, यानी मोर की वाइफ को, मोर की फीमेल को, उसको कहते हैं मोरनी को ड्रेल कहते हैं। तो दिस इज डाल ड्रेल। लिखा है इसको ऐसे जाएगा, रिप्रेजेंट होगा रोमन में इस तरह से, उर्दू में इसको ऐसे बोला लिखा जाता है। यानी हर्फ एक ही है लेकिन उसकी अशकाल मुख्तलिफ है। सिंधी में डाल ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में डाल ऐसे लिखा जाता है। इसको डे पढ़ते हैं या डाल पढ़ते हैं। और यहाँ पर ड्रेल जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है उसकी शक्ल के तौर पर। उसके बाद है ढाल या ढे। ढाल भी पढ़ा जाता है, उसको ढे भी पढ़ा जाता है। और दिस इज ऑक्स, दिस इज ऑक्स। ये इसको हम सिंधी में ढगू बोलते हैं, इसको सिंधी में ढगू बोलते हैं। यानी गाय के हस्बैंड को सिंधी में ढगू बोलते हैं। तो ढगू, ढगो मीन्स ऑक्स, ओ एक्स। ऑक्स इज कॉल्ड ढगो इन सिंधी। दीज आर टू ढगास। जब दो हैं तो उसको हम दो ढगा चौंदा से, ढगा। इनमें से एक को ढगो कहते हैं। तो दिस इज ढाल विच इज रिटन इन उर्दू लाइक दिस। अगेन एक मुरक्कब हरूफ के साथ, यानी डाल और हे के इम्तजाज के साथ उर्दू में लिखा जाता है। उसको रिप्रेजेंट रोमन में इस तरह से किया जाता है ढ। उसको बोला ऐसे जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, हम कहेंगे सिंधी में ढे। हम इंग्लिश में कहेंगे इसको इस तरह से कि दिस इज ढे एंड दिस इज ढे ढगो, दिस इज ढे ढगो। और दिस इज ऑक्स, द मेल ऑफ काउ इज कॉल्ड ऑक्स, और सिंधी में इसको ढगो कहा जाता है। उसके बाद है जाल, और जाल में यहाँ पर जखीरा दिखाया गया है। दिस इज जाल जखीरो, किसी चीज का जखीरा, किसी चीज को जमा करना। गोदाम में ये जखीरा है तो इसको जाल कहते हैं। जाल अरबी में मुस्तामिल है, फारसी में भी है, उर्दू में भी है, सराइकी में भी है, पंजाबी में भी है, तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। दिस इज जाल जखीरो। लिखा बोला इसको ऐसे जाएगा, इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, दैट रिप्रेजेंट्स जेड। अगेन ज्वाद, जाल, जे, ये जो उस जुबान से ताल्लुक रखने वाला होगा उसको पता होगा कौन कौन से अल्फाज में इमला जो है वो जे का आएगा, किस में ज्वाद का आएगा, किस में जाल का आएगा, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन कम और बेशी एक ही है। अरबी में जब तजवीद के साथ हम पढ़ते हैं, खासतौर पर कुरान पाक, तो उसमें तीनों के प्रोनाउंसिएशन अलग हैं, लेकिन उर्दू और सिंधी में हम उसको एक स्वीपिंग प्रोनाउंसिएशन के तौर पर जाल ही पढ़ते हैं सबको। वैसे अरबी में उसका फर्क होता है, जैसे वलज़वालीन को ज़वालीन करके पढ़ा जाता है तो उसमें तजवीद में फ़र्क आता है, लेकिन सिंधी में या उर्दू में उसको जाल के तौर पर ही, यानी जेड को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज जाल ज़खीर। देन मूविंग टुवर्ड्स रे, रे उर्दू में भी है। दिस रे, रेल, रे फॉर रेल। रेल अगेन मैंने आपको बताया कि आखिरी हर्फ पर हरकत आती है, तो रेल नहीं कहा जाएगा, रेल कहा जाएगा, या रेलगाड़ी। सिंधी में, उर्दू में रेलगाड़ी बोलते हैं, सिंधी में रेलगाड़ी, या खाली अगर रेल कहेंगे तो रेल। तो दिस इज रे फॉर रेल। लिखा इस तरह से जाएगा, इसको बोला इस तरह से जाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स आर, दिस इज रे रेल। उसके बाद दिस इज एन अदर इंडिजीनियस प्रोनाउंसिएशन, दिस इज डे, व्हिच इज रिटन इन इंडिजीनियस इसलिए नहीं है कि उर्दू में भी है, लेकिन उर्दू में इसकी शक्ल इस तरह से, रे के ऊपर तुर्रा लगता है, और सिंधी में रे के ऊपर 4 नुक्ते लगते हैं, 2 पहले और 2 उसके ऊपर, तो डे, दिस इज डे। हालांकि डे सां शुरू थींदड़ हिकिड़ो लफ़्ज़ असां वटि आहे जेको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिंधियाना में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ॾिनो आहे, ड़ाक। ड़ाक उन धरतीअ खे चइबो आहे। असां मां पंहिंजनि दोस्तनि खे ॿुधायां तो ड़ाक एक लफ्ज़ है जो कि शुरू होता है डे से, वाहिद लफ्ज़ है जो कि डे से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर माड़ी दिखाई गई है। ड़ाक उस सरज़मीन को कहा जाता है, उन ज़मीन खे चइबो आहे जॾहिं दरिया पाए वेंदो आहे, बोड ईंदी आहे, बोड अचण खां पोइ जॾहिं दरिया पाए वेंदो आहे त जेको ॾार ॾार जेको जो दरारें हो जाती हैं जमीन में, यानी दरिया आकर सैलाब के बाद जब पानी छोड़ जाता है तो उसमें दरारें हो जाती है ना, तो वो जो दरारें हैं वो ड़ाक कहलाती हैं। ड़ाक सिंधी में डे ऐसा लिखा जाता है। इहो थी सघे तव्हां लाइ नओं लफ़्ज़ हुजे, पर इहो लफ़्ज़ हिकिड़ो असां वटि आहे। पहिरियों इहो हुयो त डे सां शुरू थींदड़ कोई लफ़्ज़ कोन्हे, डे सां शुरू थींदड़ कोई लफ़्ज़ पहिरें कोन हुयो, पर हाणे असां वटि आहे, उहा आहे ड़ाक। मतिलबु पहिरें खां हुयो, पर असांखे बाद में मालूम थियो, कल्ह जेका रिसर्च वारी ॻाल्हि ॿुधाई ॿुधाई इंसाइक्लोपीडिया सिंधियाना में, उन ते हिकिड़ो नोट आहे ड़ाक। तो ड़ाक उस जमीन को कहा जाता है जो कि when the river comes, when the flood comes, when it goes back,
then the rest of the newest shape of that land is called which is in pieces. वो जो डेरल जो शेप आया उनका डाक है दैट इज कॉल्ड डाक। तो रे उर्दू में ऐसा लिखा जाता है, सिंधी में इसको ऐसे लिखा जाता है, उसको बोला ऐसे जाकर डे, और ड़ इसको ड़ बोला जाएगा रे के तौर पर। यानी जब हम रोमन में लिखेंगे तो डबल आर करके लिखेंगे ये ताकि वाजे हो कि ये डे लिख रहे हैं, रे और डे में फर्क होता है। तो ये माड़ी है, माड़ी जलबाणी है दूसरा वाक्य थे वो साउंड। माड़ी मीन्स बिल्डिंग, माड़ी मीन्स इमारत, माड़ी मीन्स इमारत। कोई भी इमारत जो कि मल्टी स्टोरीड हो, सिर्फ एक स्टोरी ना हो, उसकी एक मंजिल ना हो, एक से ज्यादा मंजिलों वाली जो भी इमारत होती है उसको माड़ी कहते हैं। उसको मतलब ऐसी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग को माड़ी कहा जाता है। पहले तो ये होता था ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिलें हुआ करती थी, तो वो कहते थे कि अपने घर के ऊपर उसने माड़ी बनवाई, फिर उसके ऊपर माड़ी बनवाई। ॾिसी रते जो माड़ी हुआ रतो देरो, यू माइट हैव लिसन्ड दिस, आप तव्हां ॿुधो हूंदो इहो लोकगीत, द माड़ी, दिस इज माड़ी। माड़ी मीन्स बिल्डिंग या इमारत। दिस इज जे फॉर जैतून। यहाँ पर वैसे तो जैतून ऑलिव को कहा जाता है जो कि जन्नत का मेवा है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये जैतून गुआवा जिसको कहा जाता है उसको सिंधी में उसको भी जैतून बोलते हैं। जे फॉर जैतून, जे स्टैंड्स फॉर जेड, इस तरह से बोला जाएगा, सिंधी में इस तरह से बोला जाएगा। वैसे जो जिसका कुरान पाक में जिक्र है वो ऑलिव है, जो कि ब्लैक भी होता है और ग्रीन भी होता है। ऑलिव, छोटे छोटे ऑलिव जो होते हैं वो जैतून है, लेकिन सिंधी में गुआवा को भी जैतून बोला जाता है। गुआवा को जैतून, अमरूद को जैतून बोला जाता है। उर्दू में इसको अमरूद कहते हैं, सिंधी में इसको जैतून बोलते हैं, इसलिए जे को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जे जैतून। उसके बाद सीन है जो कि तमाम जुबानों में है, तमाम लोकल जुबानों में, जिस तरह इंक्लूडिंग उर्दू एंड पंजाबी एंड सराइकी एंड पर्शियन एंड अरेबिक। सीन स्टैंड्स फॉर सिटी, सीन सिटी, ऐसे इसको बोला जाएगा, इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स एस। उसके बाद है शीन, शीन, दिस इज शी हूं। अगेन एक ऐसा लफ्ज कि जो गुन्ने पर खत्म हो रहा है, लेकिन हम लिखेंगे उसको उसी नून की तरह, क्योंकि सिंधी में गुन्ना बोलने में तो है, लिखने में नहीं है। लिखने में वही नून गुन्ने के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि उर्दू में अलग से इस्तेमाल होता है। तो दिस इज शीन, शी हो, शे ये नून, हे नून, शी हो। दरमियान वाला नून भी गुन्ना है, शीन हुन नहीं है, शेन हुन नहीं है, शेन घन की तरह। दिस इज शी हो, 2 पदों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है, शीह। दिस इज शीह, which is sheen is pronounced like this, sheen। सिंधी में इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा और ये रिप्रेजेंट करता है SH को। उसके बाद है स्वाद, स्वाद वैसे भी तमाम जुबानों में है, उर्दू में भी है। स्वाद इज रिप्रेजेंट सूफ। सिंधी में सेब को सूफ कहा जाता है, जैसे शेर को सिंधी में शी कहा जाता है, इसी तरह से सेब को, सेब सीन से लिखा जाता है लेकिन सिंधी में सूफ कहते हैं, सूफ। स्वाद वाव फे। सचल सरमद सिंधी के बड़े शायर हैं, उन्होंने उर्दू और सिंधी की तफरीक इस तरह से मिटा दी, एक बैत में याद आ गया बरसवील जिक्र तो आपको बताते चलूं। तो उन्होंने कहा कि कोथो चवे सूफ, कोथो चवे सैब। कोथो चवे सूफ, कोई कहता है उसको सूफ, कोथो चवे सेब, कोई उसको सेब कहता है। इनमें कहो ऐब गाल मिड़े सागी, तो उसमें ऐब क्या है? अगर एक बंदा सेब कह रहा है, दूसरा सूफ कह रहा है, तो यानी ये 2 जुबानों के मिलन की बात कर रहा है कि इसमें क्या बात है। अगर 2 जुबानें मुख्तलिफ हैं तो वो कोई यानी एक दूसरे से दूरी का बायस नहीं होनी चाहिए। कोथो चवे सूफ, कोथो चवे सेब, इनमें कहो ऐब गाल मिड़े सागी। तो आप में से जो हमारे दोस्त सेब कहते हैं वो सेब कहते रहें, जो सूफ कहते हैं वो सूफ कहते रहें, इससे उसका जायका, उसका स्वाद चेंज नहीं होगा। तो सेब को सिंधी में सूफ कहा जाता है, जो स्वाद से लिखा जाता है। स्वाद ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, सिंधी में ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। मतलब इंग्लिश में अगर कोई कहे, किसी को आप समझाएं कि जैसे द फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, रविशंकर जी, आप उसको ये खास तौर पर आप लोगों के लिए है जो ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, तो ये आपके लिए कि इसको स्वाद बोला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए रहनुमाई है कि दिस इज प्रोनाउंस एज स्वाद। जैसे स्वाद आ गया वो कहते हैं ना, तो ये स्वाद के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है। ये अगेन से और स्वाद की सीन की तरह ये भी एस को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है ज़्वाद, और यहाँ पर ज़ईफ उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ज़ईफ यानी ज़ईफुल उम्र, बड़ी उम्र वाले, मुअम्मर। तो ये ज़्वाद ज़ईफ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ज़्वाद। दिस इज रिटन एज ज़्वाद। यहाँ पर द फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया कैन रेफर टू दिस ज़्वाद। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज
यानी अगर कोई कहे कि व्हाट इज रिटन, व्हाट दिस इज रिटन, व्हिच लेटर दिस इज रिटन, तो यू कैन से दिस इज ज़्वाद, सिंधी में इनखे ज़्वाद पढ़ंदा सूं, और दिस रिप्रेजेंट्स अगेन जेड। उसके बाद है तुए, जो कि उर्दू में भी है, ये तुए ज़ुए ऐन गैन। उसके बाद मुख्तलिफ मुसलसल हरूफ हैं जो दोनों तीनों चारों ज़ुबानों में हैं, अरबी में भी है, फारसी में भी है। तुए, तुए फॉर तोतो, तोता जो है वो उर्दू में भी तोता ही लिखा जाता है, तुए के साथ ही लिखा जाता है। तुए तोतो ऐसे सिंधी में बोला जाएगा, ऐसे उसको इंग्लिश में बोला जाएगा, यानी प्रोनाउंस किया जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है ते को। ते तारे की तरह ते तोतो भी ते कोई रिप्रेजेंट करेगा, त इहा आहे ते तुए तोतो। मूंखे उमेद आहे तव्हांखे नंढे लाइ जेको तव्हां सिंधी ॿारहं किताब में जेका तव्हां पढ़ी हुई पटी, उहा तव्हांखे यकीनन यादि ईंदी हूंदी। मूंखे बि यादि अचे पई, ऐं पढ़ण में उहो ई मज़ो मूंखे अचे पियो। उसके बाद है जुए, और ये बरसों से जब से जुल्म भी नहीं ईजाद हुआ था, जुल्म और सजा की तारीख से पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, जुए जालिम। और जालिम में एक उस्ताद को दिखा रहा है, हालांकि आजकल ऐसे उस्ताद नहीं होते, आजकल तो उस्ताद डांट भी नहीं सकता, तो ये शागिर्द को जो है वो स्टिक के साथ सजा दे रहा है। हालांकि आजकल ऐसे उस्ताद नहीं है, बल्कि आजकल की नस्ल के लिए शायद ये हैरान को ना हो कि भाई उस्ताद ऐसे भी सजा देता है, कि लेकिन हम शुरू से इसको ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। या तो ये है जुए, जुए जो कि अरबी में भी है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है। जुए विच रिप्रेजेंट्स जैड, इसको ऐसे बोला जाएगा जुए, सिंधी में ऐसे बोला जाएगा। और दिस इज जुए जालिम, जालिम जुए से लिखा जाता है। बहुत सारे और भी अल्फाज हैं जिसमें जुए इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग जुए से स्टार्ट होने वाले भी होंगे अल्फाज, लेकिन बहुत सारे अल्फाज के दरमियान में भी आता है। दिस इज एन, एन स्टैंड फॉर एनक, एन एनक, उर्दू में उसको एनक बोलते हैं, सिंधी में आखिरी काफ पर हरकत आ जाएगी, यानी जबर आ जाएगी, एनक, उसको बोलेंगे एनक, एन एनक। तो दिस इज एन एनक। एंड देन एन एनक जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, एन, और लिखा उसको ऐसे जाएगा, एन एनक। उसके बाद है गैन, गैन गालीचो, दिस इज गालीचा, जो कि उर्दू में भी गालीचा ही बोला जाएगा, फारसी में भी गालीचा ही बोला जाएगा। गैन गालीचो, गैन इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एज फार एज द रोमन रिटन इज कंसर्न। सो दिस इज गैन गालीचो। उसके बाद है फे फानूस, दिस इज फानूस, सिंधी में फानूसो भी चवंदा आहियूं असां हुनखे। दिस इज फानूस। फे वही है जो कि एफ को रिप्रेजेंट करती है, और इस तरह से उसको बोला जाएगा, इस तरह से उसको लिखा जाएगा। तो ये है फे फानूस। उसके बाद है फे, मैंने आपको कल भी बताया था, ये है पहिया, जिसको सिंधी में फीथो बोलते हैं। फे एंड फे में फर्क है। खोड़ सारा दोस्त फे फीथो जो ना, फे फीता तो हो सकता है जो काटा जाता है इफ्तिताह के टाइम पर, लेकिन दिस इज फे फीथो। पहिए को सिंधी में फीथो कहा जाता है। व्हील व्हिच इज कॉल्ड व्हील इन इंग्लिश। तो फूल, जिस तरह से फूल है, फूल को सिंधी में गुल कहा जाता है, हालांकि फारसी में और उर्दू में गुल कहा जाता है। तो उर्दू में उसको फे को ऐसे लिखा जाएगा जिस तरह से आपने ये देखा बिल्कुल एंड में, बॉटम राइट पर ये फे लिखा हुआ है, पीएच को रिप्रेजेंट करता है। रोमन में फे ऐसे बोला जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा। फानूस वाली फे पर 3 नुक्ते लगा दें तो ये फे बन जाएगा, जो कि पे और हे के मुरक्कब हरफ को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज फे फीथो, फीथो मीन्स व्हील। देन दिस इज काफ, काफ कलम। आजकल कलम ऐसे हो गई है, यानी बॉल पॉइंट को भी हम कलम कह रहे हैं, ऐसे दिन भी आने थे। तो दिस इज काफ, प्रोनाउंस इन सिंधी लाइक दिस, और इन इंग्लिश लाइक दिस, काफ। और ये रिप्रेजेंट करता है क्यू को, काफ। दिस इज काफ कलम। उसके बाद है काफ, काफ कुर्सी, काफ किताब, काफ से कुत्ता। पाण मुंहिंजे ख़्याल में नंढपण में असांजी एज वारनि काफ कुत्तो पढ़ियो हुयो, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अञा ताईं शायदि उहो ई हुजे, पर दिस इज काफ कुर्सी। काफ सां किताब भी थींदो आहे, रिटन इन सिंधी लाइक दिस, सेड इन इंग्लिश लाइक दिस, रिप्रेजेंट्स के। उर्दू में इसको ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में जैसे सिंधी में खे लिखा जाता है, उर्दू में काफ लिखा जाता है इस तरह से, और सिंधी में काफ इस तरह से लिखा जाता है। ये फर्क अगर आप महसूस करेंगे कि सिंधी में काफ कैसे लिखा जाता है, उर्दू में कैसे लिखा जाता है, तो आपके लिए आगे आसानी होगी। जिस तरह से ये आ गया, दिस इज खे खट्ट, यानी उर्दू में इसको काफ और हे करके एक साथ लिखते हैं, खे करके लिखते हैं, और सिंधी में इसको ऐसे लिखते हैं, खे खे। दिस इज सेड इन सिंधी लाइक दिस, इन इंग्लिश लाइक दिस, खे। दिस इज खे खट्ट। चारपाई को सिंधी में खट्ट बोला जाता है। वैसे उर्दू के कुछ इलाकों में, यानी
उर्दू मेरिट से भी है, उर्दू दिल्ली से भी है, मुख्तलिफ उसके जो मकादमी फ़िक्र हैं और मुख्तलिफ उसकी जाए पैदाइश है। तो कुछ इलाकों में खाट भी कहा जाता है, तो वैसे उसको चारपाई कहा जाता है। सिंधी में इसको खट्ट बोलते हैं। खे और उसके बाद टे, 3 नुक्तों वाली टे, वो तुरे वाली टे नहीं, सिंधी में 3 नुक्तों के साथ टे लिखी जाती है। तो दिस इज खे खट्टा, दिस इज गाफ एंड दिस इज गधा, जिसको सिंधी में गडह बोलते हैं। गडह, गाफ, गडह। गडह मीन्स डोंकी, donkey is called gada in Sindhi. Again, a new word for you. This is gaaf. This is said in English and Sindhi like this. This is said in English like this, gaaf, and this represents G in Roman. Gaaf, gada. Then this is gay. Gay is gaun. गाय को सिंधी में गऊ बोलते हैं। cow is called गऊ in Sindhi. गऊ, cow. बकरा, सूरह बकरा आपने सुना होगा, उसको अरबी में बकरा बोला जाता है। तो सिंधी में उसको गऊ बोला जाता है। और गे का प्रोनाउंसिएशन अगेन एन इंडिजिनियस प्रोनाउंसिएशन, गे, गे इज गऊ। तो गे जो है वो उसको रिप्रेजेंट हम जो रोमन है उसमें डबल जी के तौर पर करेंगे, उसको बोलेंगे ऐसे, और उसको सिंधी में इस तरह से बोलेंगे, दिस इज गे गऊ। उसके बाद है घे घोड़ो, कमोबेश उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से उर्दू में लिखा जाता है। हल्की सी दुम हम उसके आखिर में लगा देते हैं। ये भी विसरग ऐं विसरग वारनि अखरनि मंझां आहे, यानी गह ऐं घ में फ़र्क़ु हूंदो आहे। ॿिन्ही जी लिखणी में फ़र्क़ु हूंदो आहे। इहो वरी तव्हांखे हिन पट्टी खां पोइ सम्झाईंदासीं त विसरग ऐं विसरग लिखण में कहिड़ो फ़र्क़ु हूंदो आहे। कंप्यूटर में बि शिफ्ट सां उहो लफ़्ज़ शिफ्ट जी दॿाइबो त घे घोड़ो लिखिबो। जेकॾहिं गह लिखंदव या गुहराम लिखणु चाहींदव त जी अलॻि प्रेस कंदव, एच अलॻि प्रेस कंदव। जेकॾहिं तव्हां घे घोड़ो लिखणु चाहींदव त शिफ्ट जी प्रेस कंदव त घ लिखिबो। त विसरग विसरग में इहो फ़र्क़ु हूंदो आहे। त दिस इज घे घोड़ो, रिप्रेजेंटेड इन रोमन लाइक दिस, जी एच, और उसको बोला ऐसे जाएगा सिंधी में, और उसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा। कुछ लेटर्स अभी रहते हैं, लेकिन आखिरी 5 मिनट हैं। मैं चाहूंगा अगर कोई क्वेश्चन है तो शार्प एंड क्रिस्प अपना फौरन अनम्यूट करें, अपना नाम बताएं, अपना सवाल करें, ताकि क्लियरिफिकेशन हो सके 5 मिनट के बाद, ताकि हम आपसे फिर इजाजत चाह सकें। घे घोड़ों के बाद ये सिंह से हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे इसी टेबल का। तो आपके पास अगर कोई सवाल हो तो काइंडली, जैसा कि मैंने आपका होल्ड योर थॉट और नोट डाउन कर लें। तो मुख्तसर अल्फाज में सवाल करें, रिलेवेंट सवाल करें, अपना नाम बताएं, और जल्दी से मैं चाहूंगा कि इस अल्फाबेट के हवाले से कोई सवाल हो तो करें। अनम्यूट कीजिए और जल्दी अपना सवाल कीजिए। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। Any questions? No questions? Or you are trying to No, unmute sir. yourself? जी, you have a question, sir. न सर आज को क्वेश्चन कोने बस। अच्छा ना, कुछ दोस्तन वटि क्वेश्चंस हुया जिनके मूं होल्ड देयर थॉट चवण लाइ चयो हुयो, करण लाइ चयो हुयो। कंहिं वटि कोई क्वेश्चन हुजे? Is there anybody who has a question regarding these letters? खास तौर पे असांजा उहे खास तौर पर वो दोस्त के जिनके लिए ये हरूफ नए थे, तो उनके पास क्वेश्चंस जरूर होंगे। Any questions? There were some questions raised during my conversation, and I requested them to hold their thought, to hold their questions. So if there is any question regarding this or the information which I conveyed to you before this table, if there is any question, you may ask, and then we can move forward. Yes, sir. One question is there. Yes, please. Your good name, sir? मकसूद अली। जी, मकसूद अली साहब। सर, जो आपने बताया इसम सगीर, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? किसको क्या बोलेंगे? इसमें सगीर। इसमें सगीर, इसमें तस्गीर, नंढड़ो करण के नाले के इसमें तस्गीर, तस्गीर, दिस इज तस्गीर। अच्छा, तस्गीर लिखते कैसे है उसको? नहीं, लिखण तस्गीर, तस्गीर कीअं लिखबो? तव्हां इहो त तस्गीर कीअं लिखबो? यस सर। तव्हां सगीर लिखण, यू नो हाउ टू राइट सगीर? सगीर कीअं लिखबो आहे? सगीर लिखण अचे तो स्वाद, नहीं सर। स्वाद गैन ये रे, स्वाद गैन ये रे, सगीर। सगीर मीन्स छोटा। सगीर मीन्स छोटा, कबीर मीन्स बड़ा, सुगरा कुबरा आपने नाम सुना होगा, खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल सुगरा, अकबर, असगर। सगीर मीन्स छोटा। कहते नहीं बेचारा छोटा है, सगीर है। सगीर में ते ऐड कर लें, तस्गीर। तस्गीर यानी किसी भी इस्म को छोटा करना,
यानी उसकी मासूमियत बढ़ाने के लिए छोटा करना, उसका उर्दू में फार्मूला है कुलिया चा ऐड करना, बागीचा, यानी बाग का छोटा बाग होगा तो बागीचा, ठीक है। इस तरह से किताब है तो किताबचा। अच्छा सर, उसको जी, इंग्लिश में क्या क्या कहेंगे? ईटी उसमें इसमें तस्गीर। इसमें तस्गीर को उसके लिए प्रॉपर वर्ड आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू, लेकिन इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कोई लफ्ज होगा उसका इसमें तस्गीर का, यानी कि इसमें के छोटो नंढड़ो कर्ण, तो उसको इंग्लिश में इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किचन को किचनेट, गार्डन को गार्डनेट, केबिन केबिन को कैबिनेट, बुक को बुकलेट, छोटी किताब होगी किताबड़ो हूंदो तो उनखे बुकलेट चइबो। तो ईटी जो फॉर्मूलो इंग्लिश में लगंदो आहे, चा जो जेको आहे सो फॉर्मूलो उर्दू में लगंदो आहे, सिंधीअ में ड़ो, ॿार ॿारड़ो, यानी किताब किताबड़ो। त इहो जेको आहे न, इहो ड़ो लॻण जेको आहे सो रातड़ी, की नावेलो मुसाफ़िर वञ रही पो रातड़ी, मन रात वॾी रात आहे, रातड़ी मानिए गबड़ो खा, यानी उसको छोटा करते हैं हम ताकि उसमें मासूमियत का आंसर हो, या उसके बड़े होने को जो है वो, यार इन नंढड़ो कमड़ो न तो करी मुंहिंजो, यानी अगर कहेंगे यार तुम्हें वॾो कम आ तो वो डर जाएगा कौन सा काम है। तो अगर हम कहें यार नंढड़ो कमड़ो न तो करी, तो यार एक छोटा सा काम है वो भी नहीं कर सकते। तो ये है, इसको असली तस्गीर बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, आई विल टेल यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. So we are about to conclude this class. So we will continue this alphabet tomorrow. ये घोड़ों तक हमने पढ़ा, और उसके बाद ये और लाम और मीम आखिरी जो चंद हरूफ हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। If you have any questions regarding the things which I told you about Perso-Arabic languages, जो हमने इस अल्फाबेट से पहले जिक्र किया था, हरूफ इल्लत के हवाले से, या फिर आखिरी हर्फ पर जो हरकत है, हरकत यानी एराब या जेर या जबर या पेश, सिंधी में जज्म नहीं है, जज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, जज्म का प्रोनाउंसिएशन जरूर है लेकिन जज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, शद भी नहीं है सिंधी में। सिंधी में मुशद्दद अल्फाज जो हैं वो गैर मुशद्दद बोले जाते हैं। सिंधी में मोहब्बत जो है महबत बोला जाता है, मोहब्बत लड़े वही मुल्क मा। तो ये फिर हम जब गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो इनका मुताला करेंगे। फिल वक्त हम इस अल्फाबेट को देख रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे, ये गे सिंह से ऑनवर्ड्स, घे के बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क द एडमिन or directly ask to me, but the questions should be relevant, and I hope that you are taking interest, and thank you very much for your time and interest. So this was class number 3, and this is my privilege to welcome you all. And now this is of course the compulsion of the time to say you goodbye, and I hope that you will be enjoying happy learning.